السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بیان کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور عقیدے کا بگاڑ۔ سامعین، عقیدہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے زیادہ دلائل کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کائنات کا وہ واحد چچا تھا کہ جس نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کی ہو، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ساری دنیا سے ٹکر لی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدت سے محبت کرتے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ ابو طالب کی کفالت میں پلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عقیدے کا اظہار لا اعبد ما تعبدون کا عقیدہ ظاہر کر کے کیا کہ میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صحیح عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی تو ان کو آگ لگ گئی۔ وہ ابو طالب کے پاس ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایتیں لے کر آنے لگے کہ یہ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتا ہے، ہمیں بد عقیدہ قرار دیتا ہے، اس لیے ان کو روک لو۔ لیکن ابو طالب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہ روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیر کفالت عقیدہ توحید کا پرچار کرتے رہے۔ سامعین، ایک دفعہ ابو طالب کو کفار مکہ نے مل کر اجتماعی طور پر دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے بھتیجے کو اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے سے باز نہ کریں گے تو وہ جنگ چھیڑ دیں گے، اور یوں دونوں میں سے ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ اس دھمکی کا ابو طالب پر اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں عقائد کی اصلاح کے اس کام کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا کہ جب تک اللہ اس عقیدہ یعنی توحید کو غالب نہ کرتے، یا پھر میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں، یعنی میں یہ کام ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے کہ شفیق و مہربان چچا بھی کفار کی جنگ کی دھمکیوں کی وجہ سے ساتھ چھوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حالت میں آنسو بھری آنکھوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے پلٹے، ابو طالب نے جب اپنے پیارے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس کا کلیجہ یہ منظر دیکھ کر پھٹنے لگا، دل جذبات سے بھر گیا، اور انہوں نے واپس پلٹتے ہوئے بھتیجے کو فرط جذبات سے پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ جذبات بڑی آواز میں بڑے اعتماد اور قوت سے بولے، اے بھتیجے، جاؤ، جو چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی قسم، اے بھتیجے، یہ کفار مکہ اگر تمام کے تمام مل کر بھی اکٹھے ہو کر اپنی تمام جمعیت، فورس و نفری سمیت بھی آ جائیں تو ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی اصلاح عقائد والی بات کھلم کھلا کرو، تم پر کوئی پابندی
वक़्त गम नहीं। ए प्यारे भतीजे, बस तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आँखें इससे ठंडी हो जाएं। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा, जो अपने भतीजे की आंखों में आंसू के तैरने वाले कतरे भी ना देख सका, और यही मंजर देखकर खित्ता अरब के कुफ्फार से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गया। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस्लाम की तबलीग करने लगे। एक बार फिर कुफ्फार का वफद अरब का खूबसूरत तरीन जवान वलीद बिन मुगीरा के बेटे अमारा को लेकर अबू तालिब के पास पहुंचा और बताया कि तुम्हारा भतीजा हसब साबक अपने अकायद की तबलीग में लगा हुआ है। ये खूबसूरत लड़का हम से ले लो और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौंप दो। हम इसको अपने खुदाओं की तकज़ीब व बेअख्तियार साबित करने के जुर्म में कत्ल कर देंगे, लेकिन इसकी दियत में कबल अज़ वक़्त हम आपको ये लड़का दे रहे हैं कि आप इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अपना बेटा बना लें। तो अबू तालिब ने पुकार कर फैसला कुन अंदाज में कहा, अल्लाह की कसम ये नहीं हो सकता। लिहाजा वफद नाकाम वापस लौट गया। अब उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की मंसूबा बंदियाँ करनी शुरू कर दी। जब इसका इल्म अबू तालिब को हुआ तो इनकी मोहब्बत का वालिहाना अंदाज देखें कि उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी देकर भतीजे को बचाने की तैयारियां शुरू कर दी। अबू तालिब को हर वक्त भतीजे के बारे में ख़तरा लगा रहता, इसलिए जब रात होती तो वह बेकरार बेचैन हो जाते। जब लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, तुम इसी बिस्तर पर सोए रहो। मकसद ये था कि अगर कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नीयत से रीकी कर रहा हो तो वो देख ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ सो रहे हैं। फिर जब लोग सो जाते तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बदल देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अपने बेटों, भतीजों या भाइयों में से किसी को सुला देते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि तुम इसके बिस्तर पर चले जाओ। अल्लाह अकबर! ये क्या तिफा था, क्या वफ़ाएं थीं, क्या पासदारियाँ थीं, क्या जानसारियाँ और जान बाजियाँ थीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर भाई, बेटा या भतीजा बेशक कुर्बान हो जाए, लहू में नहा जाए, कत्ल हो जाए, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर खराश तक न आए। अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम के मुतल्लक़ सिद्क़े दिल के साथ इकरार करते हुए ये अशार पढ़ा करते थे। वो कहते थे, और बेशक मैं ये जानता हूँ कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दुनिया जहाँ के तमाम अदियान से आला, अरफा और बेहतर है। अगर मुझे अरब लोगों की लान, मुलामत और गालियों का डर ना होता तो मुझे अलल इलान खुले तौर पर इस दीन को कबूल करने वाला पाता। यानी अगर मुझे लानत, मुलामत और गाली दिए जाने का डर ना होता तो मैं खुले आम इस्लाम कबूल कर लेता। साबित हुआ अबू तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहायत वालिहाना मोहब्बत उल्फत करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दीन बरहक समझता था, लेकिन साथ साथ बुतों की पूजा और इनसे नफ़ा नुकसान का अकीदा भी रखता था, और ये अकीदा इसका आखिर दम तक रहा। सही बुखारी में सैयदना मौसब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब अबू तालिब की वफ़ात का वक़्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ अबू जाहिल भी मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, बस एक कलमा जिसके ज़रिए मैं अल्लाह के पास आपके लिए हुज्जत
पेश कर सकूं। ये सुनकर अबू जाहिल और अब्दुल्ला बिन उमैया ने कहा, अबू तालिब, क्या अब्दुल मुतलिब की मिल्लत से रूह फेर लोगे? फिर ये दोनों बरा इनसे बातें करते रहे, यहाँ तक कि आखिरी बात जो अबू तालिब ने लोगों से कही ये थी कि अब्दुल मुतलिब की मिल्लत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक अपने चचा से के मुतल्लिक रोक ना दिया जाऊं तब तक इनके लिए दुआए मगफरत करता रहूँगा। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए ये दुरुस्त नहीं कि मुशरिकीन के लिए दुआए मगफरत करें, अगरचे वो कुराबत तार ही क्यों न हों, जबकि इन पर वाज़िह हो चुका है कि वो जहन्नमी हैं। और ये आयत भी नाज़िल हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे पसंद करें हिदायत नहीं दे सकते। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर हिमायत व हिफाजत की थी। वो दर हकीकत मक्के के बड़ों और अहमकों के हमलों से इस्लामी दावत के बचाव के लिए एक किला थे, लेकिन वो बज़ाते खुद अपने बुज़ुर्ग आबाओ अजदाद की मिल्लत पर यानी गलत मुशरकाना अकायद पर कायम रहे, इसलिए मुकम्मल कामयाबी ना पा सके। चनाचे सही बुखारी में सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुतलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के क्या काम आ सकते हैं, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूसरों पर बिगड़ते और इनसे लड़ाई मोल लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम की एक छिपछिपली यानी कम गहरी जगह पर हैं, और अगर मैं ना होता तो वो जहन्नम के सबसे गहरे खड्डे में होते। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का तज़किरा हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है क़यामत के दिन इन्हें मेरी शफाअत फ़ायदा पहुँचा दे और इन्हें जहन्नम की एक कम गहरी जगह में रख दिया जाए कि आग सिर्फ इनके टहनों तक पहुँच सके। सही बुखारी की ही एक रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के मुतल्लिक़ फरमाया कि मेरे चचा को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की ऐसी जूतियाँ पहनाई जाएंगी कि जिनके असर से उनका दिमाग इस तरह खोलेगा कि जिस तरह आग पर रखी हुई हंडिया आग के जोश से उबलती है और खोलती है। अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी तफसीलात अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि आखिरत में कामयाबी की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ सही अक़ीदे पर मौकूफ़ है, जो कि कुरान और हदीस से साबित हो। इसलिए इस्लाह अक़ीदा की फ़िक्र करते रहना बहुत ज़रूरी है। इस मिसाल से बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि एक तरफ पैगम्बरों के सरदार ख़ातमुल अंबिया शाफ़ी रोज़े महशर और दूसरी तरफ इनके चचा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर जान की बाजी लगाते हैं, नहायत मोहब्बत करते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक इनके दाएं बाएं आगे पीछे से दुश्मनों से इनकी हिफाजत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले दीन को बरहक भी जानते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नतीजा था कि वो सारी दुनिया की कुव्वतों से टक्कर लेने पर तैयार हो गए और इसी बिना पर अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहने लगे कि भतीजे तुझ तक वही पहुंच सकता है जो मुझे मट्टी के नीचे दफन कर दे, यानी मेरी लाश से गुजर कर ही तुझ पर हाथ डालना मुमकिन हो सकता है।
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ ان تمام باتوں اور محبتوں کے باوجود چونکہ ان کا عقیدہ درست نہ تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ہم تم کیا چیز ہوتے ہیں؟ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں۔ سامعین، مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔